Now, if you want, like I can show you the graph. Uh, the cases are like every year the cases are rising. The Chrome is visible, no? Yes, yes, yes. So there is basically like somewhere around 20 to 23% increase in the lawsuit of like non-accessible websites. And furthermore, like if we want to hit like European markets or like some markets in America, so our websites must adhere to some compliances like WCAG. Like there are various standards like A standard, AA, AAA. So minimum our website must adhere to WCAG 2.0 standards, and like it will help us to like it will help our furthermore like it will help our website to be like much more user friendly to people with like disabilities. Now the main thing like why we need to make our website accessible is because like everybody is not born with the like same blessings that we have. Like some people have some motor disabilities, some may not be able to see properly, some have like color blindness. So for them like we make the websites much more accessible, so they use some accessible technologies, assistive technologies such as like screen readers, or you can say they use keyboard navigations to navigate through our websites. So for them like our websites must be accessible. The solution to the above problem is like as I said, it can be divided into two parts. One is while designing the websites and the other is while developing them. So uh, yeah, like I said, like some there are some people like they have some kind of visual impairment or like some motor disabilities. Like you know that Stephen Hawking, he wasn't able to move like any part of the body. So like like them also like should be able to uh, should be able to like read through our websites. Now for them like there are many audio tools that are uh, that are there that they use, like some are inbuilt in the like in their PC, and we can like also use some extensions, Chrome extensions, to like read through our websites. uh, so starting with the design part, um, like as designers like we have the power and responsibility to make sure that everyone has access to like what we create. Like whatever we create should be like it should be like equal for both, like for normal people and the people with disabilities. Now uh, according to some survey, like in the survey by WHO, like it's estimated that over like 217 million people have some moderate or like severe vision impairment. Now if we don't follow like certain standards while designing our websites, while designing our designs or apps, so these people will not be able to grab as much as like we normal people do. So like there are some like there is a huge list that we need to follow, but like I will be covering some of the major parts that we can uh, like incorporate from tomorrow only. So the first is like color contrast and text size. Now there are like some old people like who not be able to see well, or like some people are like colorblind. You might be knowing that like Mark Zuckerberg, he's also colorblind. uh, the logo of Facebook is blue because like he can see that color only. There is a story, whole story behind that. So the like many people are like colorblind, so we should be able to give such colors with such contrast that like the colorblind people may also be able to like differentiate between them, right? So like while designing, like many designers, they have like amazing displays. Like they have like our current MacBook, like it has very amazing display. So whatever we design in our Mac, it appears very bright. Even we give some colors with very less you can say gray shade, it's easily visible in our PC. Whereas if we view the same color in like some Windows laptop or some low end laptops, so we will not be able to see that those colors properly. So we need to maintain some color contrast to our websites. So there is a tool to check the contrast ratio. Uh,
where we can like give the background color and the text color, and it will give us the contrast ratio. So the contrast ratio should be like at least like 4.5. So suppose we give a background of red in blue, see the contrast ratio has been dropped to 2.14. So we can't use this combination of colors for background and text. So there is like certain standards that we need to follow while developing this. Just a second, let me pull in the charger. तपल भाई अपने पास ऐसा कोई टूल होता है क्या जहाँ पे अपना अपना वेबसाइट या ऐसा कुछ फेस करके अपना ये कॉन्ट्रास्ट वाला चीज जो बोला ना हाँ उसका अपन को कुछ ऐसा ओवरव्यू या हाँ हाँ, उसका एक टूल आता है, अपन टेस्टिंग वाले सेक्शन में उसको देख लेंगे. कूल कूल सही है. हाँ, तो talking about contrast, like the contrast ratio between the text and its background should be at least like 4.5 to 1. Like it's basically the conformance level AA. Now the ratio becomes if the ratio is like quite low, so the people with like low vision, they won't be able to see the things properly. So apart from that, like there is a standard text size that we can our content in our web page should be at least of this much font size. It's somewhere around like 12 pixel, 9 point. So it recommends that like WCAG also recommends that our text size like text can be zoomed to 200%. So like if we design our websites less than with some text less than 12 pixels, so it will not be accessible to everybody. So the least variant of our typography, the font size should be at least like 12 pixel. We can't go below that. Cool. Yes. Yeah. So talking about labels, now you might be seeing two cards on the left and two cards on the right. Now the color blind people like are basically confused between the card 1 and card 2 if the contents of the card are same. Let's take an example. This is a course card and this is a path card. Card 1 is a course card and card 2 is a path card. Now if we don't include any headers, like this is a course card or a path card, and we just want to like the user to get familiar with the colors, so the color blind people would not be grab that much information. They will not be able to grab that much information from this card. So we can add labels such as like card 1 is a course or card 2 is a path. So this will help those people to like grab much more information from it. Obviously, like color adds a bit of like what we can say, color adds like a bit of more information. Like if we mark something as red, the normal people will know that yeah, it's an error, right? Whereas like the people who are colorblind will not know that it's an error if we are not including any message. Same goes with the icons, like for example, like the snack bars that we have shown in our platform. It contains some icon. Like if we delete something, it contains a delete icon, and along with the text like course deleted successfully, and the background is red. So this is a quite a like good approach that we are also providing icon. Along with that, the colors are also provided, so normal people can grab like they can grab like much more information that yeah, some error has occurred or something has gone wrong, or and like some colorblind people, they can use the icon or the label reference to get the things or like what the website is going to communicate, right? Any doubts till now? Cool. Now coming to the focus states. Now while designing, basically what the designers do, they majorly focus on the hover states, uh, like how the things will appear when they hover on like certain part of the website. Like what we do, we basically add some box shadow or some transitions to the element that on hovering on it, like it will animate 2 pixels to the top or that kind of things. Now we most of the time like we tend to forget like
to give focus states. Now if you use like default input elements, and once you focus on it, you will observe a blue ring around it. Now that's basically a focus state. It tells that the input is focused, right? Now this focus rings, you while accessing normal HTML elements, you may see that the focus ring appears around like all the inputs, all the buttons. Whereas like in our website, it only appears around the input, right? When we click the button, there is no focus state, and when we traverse through links, then also we don't get a focus state. So we need to like in, there is inbuilt support for focus pseudo class in HTML. Like we can use that to give the focus states. Uh, like for current time being, we can like keep the focus and the hover states same, uh, just adding like border to the elements. Now the benefit of this will be like when the user is traversing through like keyboards, or uh, they will be able to like see like where the current focus is. Hello, online हाँ में हाँ हाँ आ रही आवाज cool. Yeah. So while while designing like focus states, we should also like take into consideration the order in which uh, the focus state is there. Like suppose like we have a form field, and there are like 3 to 4 inputs. So after like completing the form field one, we should like move to the another input, the next input behind it, right? Like many times what we see that there are like multiple inputs. After we have completed the typing the value from in the first input, then we directly jump to the like third to fourth input, like based on priority. Now this kind of things should not be done. Yeah. तपस ब्रो इस पर वापस बताना लास्ट पॉइंट. So like suppose like there are like many input fields in the form, right? And let's take an example. There is first name, last name, and there is a age field, Yeah. right? So many times what mistake we do, like whenever we have completed typing the first name, when we press tab, we directly move to the I accept terms and condition, because the second third part was not necessary. Like it was not required field. What the designers and developer do, they basically take the focus to the like I accept the terms and condition. So this is basically considered an anti-pattern, Okay. right? So this kind of things like we can avoid. And apart from that, like all the interactive elements such as focus, select, input elements, they need to have like focus states. Cool. Okay, got it. Like it's a kind of like trend for using like placeholder as labels. आवाज भी Like में खराब हो रही. तपस भाई ये वाला पेज फिर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, बीच में आवाज आपकी रोबोट होगी. ये वाला हाँ labels. लोकल्स वाला. हाँ Okay. अभी आवाज सही आ रही है ना? हाँ सही है. Cool. Now using placeholder text as labels, like it's one of the biggest mistake like while designing a form. Like we might be tempted to go with this trend, because nowadays like everybody is trying to make their website like much more minimal, and like like to grab things, many things in a little space. Like they are like adapting this kind of things. First of all, like the thing that we are seeing in this input, it's called a placeholder. It's not a label. Label always appears on the top of like the input things. Now why should we use labels instead of like placeholders? Now whenever we use assistive technologies such as screen reader, they basically search for labels, right? They will not dictate the placeholder. And apart from that, like some users, when they start typing, right, they forget that, yeah, what was this? Like suppose
it happens very rarely, but like suppose there is a field called first name, and when I start typing like TAPAS, now some users may forget that what we need to type in this field name. So providing a label will be like much more helpful for them. Uh, now this practice like doesn't always mean that we have to clutter our design with like unnecessary informations. We just need to provide like a minimalistic information, like a minimal label, like here it's a first name, last name, this kind of things. When we need to like give a large description, then we can use like alternatives such as like tooltips, that kind of things. Now alt tag for images. Now this is basically focused on developers. However, like designers should also like provide a context. Now suppose we are using images in our website. We always need to provide alt tags for images because the screen reader will go for alt tags only, right? Now if we have not given alt tags, so the context of the image should be like much more, like the users should be able to grab the context of the image. So the content that is surrounding the image must be helpful for it in case we miss for all tags. So it's not totally on designers to ensure this, but like they can work collaboratively with the developers to see that these things should be also followed. Yeah, using the correct markup. This is totally like kind of like a developer perspective. We should use correct markup. Now suppose we have developed a website, and instead of using a heading, we have used a normal div element, and we have like given it a CSS kind of thing that it appears bold and large. We have given it a font size, but it's not a heading element, h1 h2 tags. Now the demerit of using it, whenever a screen reader will start reading our website, it will not say it as a heading, right? So the context of the entire website, the user will not be able to grab it. So like we need to use like correct markup. There are many markups that we are not knowing, like sections, navigation, footer, header. There are like many markups, so we should use that markups in our website instead of using like plain like div elements, or using the like anchor tags and that kind of things. So whenever a screen reader starts reading the page, first of all it looks for the heading in the page, and any user after reading the heading, like it will get a context, yeah, what's there in the page. Like in newspaper, there is a heading, and after that like we have an entire description. So from the heading we grab the information, like what's there in the description. So a heading is must. And here what the designers can do, like suppose like we are using some variants such as heading XL, heading XXL, this kind of things. So they must ensure that the tags are like h1 h2, this kind of things are followed instead of like the normal div elements, right? Yeah, now coming to the support of keyboard navigation. Now keyboard accessibility is like it's one of the most critical aspects of web accessibility. Like not many people rely on screen readers, but people who have like they have some motor disabilities, like if they are not able to move their hand properly, they don't use mouse. They basically prefer tab, space, enter, this kind of things to like navigate through our websites. So for such cases, like our websites must be keyboard accessible. Uh, like the entire we don't need to focus each and every element on our website. Like if there is a heading, we don't need to support like keyboard navigation. The screen readers will automatically read it. But like there are some elements such as button, select, checkboxes. Like they are also easily accessible, or they have the built-in support for keyboard navigation. But things that matter are basically, first is uh, the order in which we place the elements. Now suppose we have a header, after that we have a body content, and after that we have a footer, right? Now how now if a developer has developed in such a way that he has put header below
like below the footer, and based on like CSS, he has just moved it to the top. So when we start navigating through our page, the first tab will directly move to the element that occurs first in the DOM. Let me just show you an example. Suppose in this page. So ideally how we develop is like the header is there, after that the body content is there, and at last we have some footer content, right? So if we have developed it in such a way, see, we are navigating through keyboard. So we are navigating in proper fashion, like one after another, the page is scrolling. But if we don't follow such kind of things, like suppose we have put header below this footer, right? And based on like applying some CSS, we have just moved it to the top of the DOM. So this will be, this is considered an anti-pattern while using keyboard navigation, because like our focus will keep on jumping like a pinball from here to there. So we must be very careful while designing like this keyboard navigation components. Just a second. Yeah. A good practice for our websites will be like testing our site using only keyboard. Now using the tab key to move through links and forms, using enter or spacebar to perform actions, we can use that. And apart from that, like we should not what to say, if we are supporting keyboard navigation and if we have a like select element, suppose in our website we have a user list in which like long list of users are there. So if in that like we support keyboard navigation, the user will keep on pressing tab and the list is like endless. So we must be very careful while doing that kind of things. For the current use case, we can like provide the focus on only the search bar. Like when there is a long list, the user will not traverse through each and every element. He will directly search through the search bar. So we can follow that. And apart from that, like if we are having some links in our websites, so we have seen that it contains some random IDs, the Mongo generated IDs. So while the screen reader will read it, it will be kind of very lengthy. That meet.learn.com/course/50CABCD. So it will be very lengthy. So it's not, it will be not helpful for such users. So we must be very concise. We can use some labels for such links. Like we can say that, yeah, this is a link to course page. We can keep it simple. That kind of things we can follow. That was it for the like design side. There are like many things, but like I had picked some of the major things that we can like incorporate from today only. Now we will be moving to the web development part. It will be a bit technical at some points, but like you can catch it. Now, yeah. अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, सब सही चल रहा? यस सही है। Cool. इनर्ट पॉलीफिल, ये कुछ नया अभी हम देख रहे हैं। इनर्ट पॉलीफिल बेसिकली क्या होता है मैं भी बताता हूँ। जैसे ही सपोज ये एक अपना नेविगेशन हेडर है, इस पे ये बर्गर मेन्यू है। जब इसको क्लिक करते हैं तो अपना ये साइड मेन्यू आ जाता है, राइट? जब ये क्रॉस क्लिक करते हैं साइड मेन्यू अपना क्लोज हो जाता है। तो अब इस इंटरेक्शन में मैं जब इस फेज पे हूँ, पहले वाले स्टेट में मैंने अभी टैब दबाया, मेरा सबसे पहला फोकस कहाँ होगा? इस पे होगा, बर्गर मेन्यू पे। मैंने एंटर दबाया, फिर ये खुल जाएगा। फिर मेरा फोकस, मैं टैब दबाऊंगा तो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, राइट? फिर मैं जब इसको क्लोज करूंगा, मैं टैब दबाऊंगा तो मैं क्लिक मी पे आऊँगा। आइडियली ऐसा बिहेवियर होता है। अब ऐसा इमेजिन करो, मैं टैब दबा के इस बर्गर मेन्यू पे आया, फिर मैंने टैब दबा दिया, मैंने एंटर नहीं दबाया। अब अपना फोकस कहाँ चला जाएगा? कोई बताएगा? क्लिक मी पे ना रहेगा। नहीं, अब मेरा फोकस क्लिक मी पे नहीं जाके ये 1 पे चला जाएगा, और ये 1 यहाँ हिडन होगा कहीं लेफ्ट साइड में। फिर मैं टैब दबाऊंगा, फिर ये 2 पे चला जाएगा, फिर टैब दबाऊंगा 3, 4, इस तरह से पूरा यहाँ जितना लिस्ट होगा
वो हर एक एलिमेंट पे जाने के बाद अचानक से आप देखोगे क्लिक मी पे अपीयर हो जाएगा। तो कोई भी यूज़र कंफ्यूज हो सकता है कि ये हुआ क्या। तो इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एनीवन? एक अप्रोच तो अपने दिमाग में ये आएगा कि भाई जब ये क्लोज होगा इसको डॉम से ही उड़ा दो, तो फिर क्या होगा कि अपना टैब इसके बाद सीधा इसमें आ जाएगा, और जब ये एंटर होगा तभी इसको डॉम में लाओ। लेकिन दैट सॉल्यूशन इज नॉट प्रॉपर बिकॉज like if we are performing some animations or transitions, it will be a bit jerky. Like for animations to be smooth, like we need to have that elements in the DOM, right? तो inert polyfill अब काम आता है जब भी कोई चीज़ इन फोकस होती है, जैसे ये अभी आउट फोकस है अपना इस वाले स्टेट में, तो अपन इसका इनर्ट ट्रू दे देंगे। दिस मीन्स दैट दिस एलिमेंट इज ऑफ स्क्रीन, तो इसको टैब ऑर्डर में ले आएगा ही नहीं। अब क्या होगा कि अपने टैब इसके बर्गर मेन्यू के बाद की टैब दबाएंगे तो सीधा क्लिक मी पे आएंगे, तो अपना इनर्ट पॉलीफिल वही करता है। और जैसे ही अपन बर्गर मेन्यू क्लिक करेंगे अपना ये इन स्क्रीन हो जाएगा साइड नेविगेशन, और ये पार्ट ऑफ स्क्रीन हो जाएगा। तो अब इसको हम इनर्ट ट्रू कर देंगे और इसको इनर्ट फॉल्स कर देंगे। तो ये पॉलीफिल अभी आई गेस कुछ दिन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसको छोड़ के ये इंटरनली कैसे काम करता है एक दो स्लाइड्स बाद आपको पता चल ही जाएगा। ये without using this polyfill also we can like achieve this behavior. ये क्लियर है ना इनर्ट पॉलीफिल? इसमें हिडन भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको हिडन कर देंगे फिर भी ये अपना सेम ऑर्डर में रहेगा, टैब ऑर्डर में। ओके, आपको इसको डॉम से निकालना पड़ेगा तभी होगा। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ, मुझे डाउट ये था कि जब हम टैब करते हैं तो ब्राउज़र डिसाइड कैसे करता है कि हमको नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चूज़ करना है, किस पे फोकस डालना है? क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी रिएक्ट पोर्टल यूज़ करते हैं जिसके अंदर जैसे मॉडल है या कोई चीज़ है, हम इसको डॉम के सबसे नीचे पोर्टल में किसी में ओपन करते हैं, तो वो डिसाइड कैसे करता है कि हाँ नहीं अब मुझे वहाँ पे फोकस करना है rather than क्लिक मी पे? ये चीज़ आगे कवर हो जाएंगी, फिर भी मतलब मैं जस्ट एक ब्रीफ बता देता हूँ। और ब्राउज़र बेसिकली क्या करता है, वो जितने भी इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं सबसे पहले तो उन पे मतलब फोकस करता है। जब अपन टैब दबाते हैं तो वो खोजता है कि सबसे नेक्स्ट इंटरेक्टिव एलिमेंट अपने डॉम में कौन सा है। तो आइडियली इंटरेक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या हो गए अपने, बटन्स हो गए, इनपुट्स हो गए, एंकर टैग्स हो गए, सेलेक्ट्स हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, इस तरह के इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो जब भी हम टैब प्रेस करते हैं ब्राउज़र क्या करता है, नेक्स्ट इंटरेक्टिव एलिमेंट खोजता है इन द डॉम। ठीक है, ये डिस्प्ले में वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम लेवल पे हो। अगर वो डॉम में एलिमेंट जस्ट हेलो वर्ल्ड के नीचे है और वो कहीं दूर अपीयर हो रहा है जैसे इसके अंदर है, तो वो फोकस यहाँ लेके जाएगा इंस्टेड ऑफ लाइक विजुअली हमको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वो लेके यहाँ पे जाएगा। तो वो बेसिकली अपना उस वे में फोकस करता है। दूसरा चीज़ क्या है कि वो टैब इंडेक्स वगैरह देखता है। टैब इंडेक्स वाला एक सेक्शन है अभी, उसमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि वो कैसे फिर टैब इंडेक्स के थ्रू ये कैसे करता है। कूल? हाँ, समझ गए। हाँ, फोकस। अब फोकस के बारे में मैंने अभी तो बात किया था, अब लेकिन इसका डेवलपर पर्सपेक्टिव बताता हूँ। जैसे ये आप ब्लू बॉर्डर जो देख रहे हो इसी को अपन फोकस बोलते हैं, राइट? सो फोकस इन अ नटसेल क्या है कि लाइक सेलेक्टिंग एन एलिमेंट एंड डायरेक्टिंग ऑल द कीबोर्ड इवेंट्स टू दैट एलिमेंट। सपोज ये इनपुट है, राइट? अब इस इनपुट पे मैं कुछ भी लिखूं, ये सारे इनपुट्स मतलब वो कहाँ अपीयर होंगे, इस इनपुट पे अपीयर होंगे। सेम अगर हम कोई लाइक सेलेक्ट खोल देते हैं, सेलेक्ट मतलब कि ड्रॉप डाउन खोल देते हैं और वहाँ पे हम जैसे लिखते हैं IND, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया सर्च करके हमें दिखा देता है, राइट? अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमने ये देखा होगा। तो फोकस बेसिकली वही करता है कि वो किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा और फिर अपना जितने भी इवेंट्स है कीबोर्ड इवेंट्स वो वहाँ डायरेक्ट करेगा। नाउ वो कुछ कीज़ के इवेंट डायरेक्ट नहीं करता, जैसे कि टैब में वो क्या करता है, वो नेक्स्ट फोकसेबल एलिमेंट या फिर नेक्स्ट इंटरेक्टिव एलिमेंट पे चला जाता है, लेकिन उसके छोड़ के बाकी सारे जो लाइक कीबोर्ड इवेंट्स से नंबर्स के, अल्फ़ाबेट्स के, वो वहाँ डायरेक्ट कर देता है। कूल? सो अब ऐसा मानो कि जैसे कोई यूज़र है, अब उसको अपन फोकस दिखाते ही नहीं है कि कहाँ पे। अगर उसको बॉर्डर नहीं दिखाते, रिंग नहीं दिखाते हैं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर उसने एक फॉर्म खोल लिया है, उस पर 4-5 इनपुट्स हैं, राइट? हम वो टैब दबाया जा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि वो मतलब कहाँ लैंड किया है।
और वो अचानक से कुछ भी टाइपिंग स्टार्ट करता है तो देखता है कि अच्छा इस वाले इनपुट में हुआ, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, तब उसे पता चलता है। तो उसलिए फोकस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। Now, how the users navigate, they basically use like tab keys or like shift tab to navigate, right? Now, we've the default or the native HTML elements such as like input buttons, they are implicitly focusable. Now, if we design some elements such as like we develop our own custom input or some like custom button using divs for some use cases, then also like we can make it like focusable. We can like bring it in the tab order. I will be covering that in the like tab index wala thing. But like default native elements are implicitly focusable, and जो default elements नहीं है custom components है उनको भी हम focusable बना सकते हैं with the use of like tab indexes, right? अब there are like many things which do not need to be focusable. Suppose हमने अपने वेबसाइट पे heading डाला है, एक section डाला है, ठीक है, कुछ contents डाले हैं, अगर वो इंटरेक्टिव नहीं है तो उनको फोकसेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो टैब यूज़ कर रहा है मतलब टैब यूज़ कर रहा है वो आइडियली क्या है कि वो देख पा रहा है, देख के ही वो टैब के थ्रू नेविगेट कर रहा है. फॉर द यूजर्स लाइक हु आर नॉट एबल टू सी, दे विल बी यूजिंग सम स्क्रीन रीडर्स. तो उनके लिए क्या है कि हेडिंग अगर टैग्स हमने प्रॉपर यूज़ किए हैं, सेक्शंस यूज़ किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिक्टेट कर देता है. जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी रहती है वो डिक्टेट करते समय ही बता देगा कि दिस इज़ अ हेडिंग, हेडिंग का फिर कंटेंट का नाम बताता है, इस तरह की चीज़ें वो कर देता है. तो अपना दोनों के लिए इतना यूज़ केस सॉल्व हो जाता है, राइट. हाँ, टैब इंडेक्स आते हैं. तो टैब इंडेक्स लाइक whenever like we are developing our websites, like we must try as much as we can to use the native elements. रीज़न इसके बाद वाले में पता चलेगा कि क्यों नेटिव एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है. तो एक तो अपना इनबिल्ट सपोर्ट होता है फोकस का, टैब ऑर्डर, लाइक ये अपने को मिल जाता है. और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिफ़ॉल्ट नेटिव एलिमेंट्स में होती हैं, वो अपने को एक्सप्लिसिटली देनी पड़ती हैं, राइट. बट लाइक समटाइम्स ड्यू टू सम रिक्वायरमेंट, लाइक अपने पास ऐसा रिक्वायरमेंट ही आ गया कि नहीं, अपने को सपोज एक एनालॉग क्लॉक बनाना है अपने ब्राउज़र में, अपने वेबसाइट में, और उसको खुद से बनाना है. ऐसा कुछ HTML में हमारे पास मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है जो हमें वो करके देता है, तो हम खुद का बनाएंगे और फिर उसमें हम मतलब टैब के थ्रू नेविगेट कर पाएंगे. जैसे कि 12 है, 1 2 3 ऐसे जो टाइम है अपन टैब के थ्रू नेविगेट करेंगे. तो उस समय कैसे कर सकते हैं, तो टैब इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, राइट. सो टैब इंडेक्स 0 का बेसिकली मतलब होता है कि ब्रिंग द थिंग इन टैब ऑर्डर. तो अभी जो टैब 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 करके अपन जाते हैं, टैब इंडेक्स 0 दे देंगे तो वो टैब ऑर्डर में आ जाएगा, राइट. नेटिव एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट टैब ऑर्डर में होते हैं. टैब इंडेक्स उन्हीं को देना पड़ता है जो नेटिव एलिमेंट्स नहीं है या फिर कस्टम हमने बनाए हैं. कूल. टैब इंडेक्स -1 जब देते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होता है, वो टैब ऑर्डर में नहीं आता है. लेकिन टैब इंडेक्स -1 फिर क्यों देंगे, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो एलिमेंट फोकसेबल हो, राइट, कि अगर हम उस एलिमेंट पर फोकस कर पाएँ तो उसको अपने को टैब इंडेक्स देना पड़ता है -1. जो अपन ने कुछ 1-2 स्लाइड्स पहले जो इनर्ट पॉलीफिल देखा था, इंटरनली वो वही करता है. जो भी ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स है सबका टैब इंडेक्स -1 कर देता है, राइट. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो अपने टैब ऑर्डर से बाहर निकल जाता है. कूल. तो अब अपने मन में ऐसा भी आ सकता है कि हम टैब इंडेक्स ग्रेटर देन 1 दे दे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा. सो द एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 1 विल बी फोकसेबल फर्स्ट. ये इस तरह से काम करता है ना, जैसे सपोज मैंने ग्रेटर देन 0 कुछ भी दिया, 1 2 3 4, तो स्टार्ट करेगा वो जब वैल्यू द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 0. तो टैब इंडेक्स 1 विल बी फोकसेबल फर्स्ट, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड आफ्टर दैट वो टैब इंडेक्स 0 पे आएगा, राइट. ये चीज़ समझ में आया. मैं रिएक्शंस देख नहीं सकता. Yes. Now, should we use like tab index value greater than 1? Actually, we shouldn't be using it. It's considered an anti-pattern, but like for some requirements, like we can use it. There is a reason that we support. There is a support for tab index value greater than 0, right? But it's considered an anti-pattern. We should not use it unless and until like it's very critical to use it. Cool.
And also, like if we are providing tab index value greater than 1 or 0, so what will happen, like when the screen reader will read in a linear fashion, but when we use tab to navigate, it will keep on jumping from like one place to another place. इसका मेरे पास एक सैंडबॉक्स बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे इस केस में क्या है ना अपना कि कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये 0 है, ये 5 4 3 है, 3 वाला सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो अपना डिफॉल्ट फोकस किस पे जाना चाहिए? सबसे पहले 3 पे जाना चाहिए। तो देखो टैब दबाया हमने, सबसे पहले 3 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 5 पे गया, उसके बाद वो 0 पे आया, राइट। ये अपना टैब ऑर्डर में नहीं है, इसको देखो अपन कुछ भी कर लें फोकस नहीं कर पाएंगे, तो नॉट इन टैब ऑर्डर। लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन फोकस कर सकते हैं। जैसे कुछ इस तरह का हमने लिख लिया कि टैब इंडेक्स को फोकस करो, तो जब भी पेज लोड होगा ये बाय डिफॉल्ट फोकसेबल होगा। ये देखो, तो मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन टैब ऑर्डर के थ्रू नहीं कर सकते हैं। ये अपना टैब ऑर्डर का था। अब आते हैं अपन कि व्हाई शुड बी यूज नेटिव एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ लाइक डेवलपिंग अवर ओन कस्टम एलिमेंट्स। Now suppose we have to develop a button, right? What many people do, they use like they make a div or they use anchor tags to like and give them styling so that they appear as buttons. अभी तो मतलब अभी काफ़ी इसका यूसेज कम हो गया है, बिकॉज लाइक मैनी लाइब्रेरीज हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट, लाइक मटेरियल इंटरनली ये सब चीज़ें हैंडल कर लेता है, एंड डिज़ाइन है वो भी इंटरनली ये सब चीज़ें हैंडल कर लेता है। लेकिन काफ़ी जगह अगर हम खुद से बना रहे हैं तो वहाँ पे मतलब due to improper knowledge or like lack of knowledge, we likely go for div elements instead of button elements. Now suppose we use like div instead of buttons, तो क्या क्या अपने को दिक्कत आएगा? सबसे पहला तो वो टैब ऑर्डर में नहीं रहेगा, बिकॉज नेटिव एलिमेंट्स ये बेनिफिट होता है कि वो टैब ऑर्डर में अपना होता है। सो एक्सप्लिसिटली हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे टैब इंडेक्स 0 देना पड़ेगा, राइट, उस div को, तब जाके वो क्या होगा कि वो टैब ऑर्डर में आ जाएगा। सेकेंड इज दैट whenever like any assistive technology such as voice reader tries to read our custom button, वो उसको बटन ना ट्रीट करके उसको ग्रुप ट्रीट करेगा। वो जब रीड करेगा तो वो बोलेगा, जैसे बटन ने साइन अप तो वो बोलेगा साइन अप ग्रुप इंस्टेड ऑफ सेइंग साइन अप बटन। ठीक है, अब इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम क्या करेंगे, रोल इक्वल्स टू बटन दे देंगे, तब जाके ये इशू चलो सॉल्व हो गया कि हाँ बटन टेक्स्ट बटन मतलब ऐसा कुछ बोलेगा, साइन अप बटन बोलेगा। ठीक है, अब चलो रोल दे दिया, लेकिन रोल अपना क्या है कि इसमें नेटिव बटन में अपने को कुछ रोल नहीं देना पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट मतलब टैग से ही समझ जाता है कि ये बटन है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इफ वी हैव अटैच सम इवेंट लिस्टनर्स सच एज लाइक क्लिक, सपोज मैंने बटन पे ऑन क्लिक दिया है और हम टैब के थ्रू उस बटन पे नेविगेट करते हैं, तब एंटर एंड स्पेस बार हम कुछ भी दबाते हैं उसका ऑन क्लिक ट्रिगर होता है, वेयर एज मतलब कस्टम बटन में वो चीज़ ट्रिगर नहीं होती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक अब समझो कि अपने को डिसेबल करना है, तो बटन में एक प्रॉप आता है ऑलरेडी, एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल, हमने वो दे दिया तो बटन ऑटोमेटिकली हैंडल्स दैट, इट विल गिव अ डिफॉल्ट बैक लाइक ग्रेइश बैकग्राउंड कलर, उस पर पॉइंटर इवेंट्स नल लगा देगा, मतलब अपन उसको टैब ऑर्डर में भी मतलब कि नहीं रखेगा, इस तरह की चीज़ें मतलब करेगा। लेकिन अपने अगर हम कस्टम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं तो अपने को सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, तो पॉइंटर इवेंट्स नन दो, ऊपर से उसका मतलब बैकग्राउंड CSS वगैरह चेंज करो, उसका टैब इंडेक्स वगैरह उस केस में -1 करो, मतलब काफ़ी हैंडलिंग करनी पड़ जाएगी। तो उससे बढ़िया है कि भैया अपना नेटिव एलिमेंट्स ही यूज़ करो, कस्टम कंपोनेंट्स को मतलब ना ही यूज़ करें अपन। फिर आते हैं अपन सिमेंटिक्स पे। सिमेंटिक्स लाइक ये बहुत क्रूशियल होता है, सिमेंटिक्स और आरिया लेवल्स जो होते हैं ये अभी अपन देखने वाले हैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा टेक्निकल होगा। सिमेंटिक्स मतलब सपोज हमने ये लिखा है, एक ड्रॉप डाउन बनाया है, उसमें लेबल दिया है हमने, तो प्रेफर्ड सीट टाइप और उसका कुछ मतलब वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये को क्या होता है ना कि हमने इस तरह से डॉम में चलो इसे डाल दिया, डॉम क्या करेगा, एक विजुअल UI तो जनरेट कर देगा, ये जो आप टॉप राइट में देख रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब वो एक सिमेंटिक UI भी जनरेट करेगा, ये जो बॉटम राइट में देख रहे हैं। तो सिमेंटिक UI में क्या क्या अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये क्या है, ये पॉपअप बटन है। पॉपअप बटन क्या होता है, बेसिकली सेलेक्ट जब यूज़ करते हैं ना तो उसका टाइप पॉपअप बटन होता है, ठीक है। इसकी अभी वैल्यू क्या है, तो जो अभी सेलेक्टेड वैल्यू है नो प्रेफरेंस, तो इसकी ये वैल्यू है। इसका नाम क्या है, तो नाम अपन लेबल में दे देते हैं,
लेबल के थ्रू ये नाम उठा लेता है कि हाँ ये प्रिफर्ड सीड टाइप है। इसका अभी करंट स्टेट क्या है? करंट स्टेट इसका कोलैप्स्ड है, मतलब कि ये अभी बंद है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं सिमेंटिक यूआई से। अब ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र दो चीज़ें करता है। एक तो अपना उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे उसने ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जनरेट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इट जनरेट्स एन एक्सेसिबिलिटी ट्री। अब इस एक्सेसिबिलिटी ट्री का क्या काम है? नाउ द असिस्टिव टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज़, जो भी अपन स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं या फिर मतलब वॉइस ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसको अपन यही फेड करते हैं एज अ इनपुट। तो उसको जो इनपुट जाता है वो एक्सेसिबिलिटी ट्री होता है, राइट। तो अब उसके पास एक्सेसिबिलिटी ट्री गया और एक्सेसिबिलिटी ट्री में इस तरह का इंफॉर्मेशन होता है कि ये पॉपअप है। तो क्या करता है, जब रीड करता है तो इसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन बता पाता है, मतलब डिक्टेट कर पाएगा कि या दिस इज अ पॉपअप बटन विद अ वैल्यू ऑफ नो प्रेफरेंसेस, करंट स्टेट कोलैप्स्ड, इस तरह से वो डिक्टेट कर देगा। और फिर सेम वैसा होगा कि जब कोई यूज़र अपना एक्शन लेगा, जैसे किसी यूज़र ने बोला कि क्लिक ऑन इट या फिर कुछ भी उस तरह का एक्शन लेता है, तो वो फिर वही सेम वे में रिफ्लेक्ट बैक करेगा अपना एक्सेसिबिलिटी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, मतलब वो फिर एक्सेसिबिलिटी ट्री को अपडेट करेगा, वो वापस आके मतलब जीयूआई को अपडेट करेगा, राइट। तो सेमेंटिक्स अपना मतलब काफ़ी क्रूशियल होता है। जैसे जो इस तरह की चीज़ें अपन करते हैं ना कि लेबल्स देते हैं या फिर सपोज एरिया रोल्स देते हैं, ये सीमेंटिक्स मतलब सीमेंटिक्स के अंदर ही आते हैं। जैसे अपन ने किसी को हेडिंग दे दिया, H1 टैग्स दिए, तो ये सब चीज़ें बेसिकली सीमेंटिक्स कवर करता है। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है। मतलब इन शॉर्ट मतलब यही होता है कि अपन अगर सही सीमेंटिक्स देते हैं तो उससे स्क्रीन रीडर्स काफ़ी हेल्प मिलता है सब करने में। हाँ, so like native elements, as I said that we should use native elements. So the benefit of another benefit of using native elements is that like they have implicit semantics. Suppose the password, the type of input type password is secure edit text. The button type of button is button. Type of like drop down menu is pop up button. So मतलब अब कोई बंदा है जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो उस वो इन सब चीज़ों से अकस्टम्ड होगा कि हाँ मतलब अगर सिक्योर एडिट टेक्स्ट बोल रहा है मतलब वो पासवर्ड है। अगर अगर वो डिक्टेट कर रहा पॉपअप बटन मतलब वो ड्रॉप डाउन है, अपने को उसके अंदर से वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो अकस्टम्ड होते हैं। तो अगर इफ़ यू यूज़ नेटिव एलिमेंट्स सो दिस काइंड ऑफ लाइक सेमेंटिक्स वी गेट दिस थिंग्स बाय डिफॉल्ट। कूल, अभी तक सब क्लियर है ना? रिएक्ट कर दो, रिएक्शन देख रहा Yes. हाँ। सो मेनी टाइम्स व्हाट वी जैसे अपन अपने ब्राउजर में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अचानक से एक मैसेज दिखाते हैं हम अलर्ट जैसा, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट। सो इन तरह की चीज़ें असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करता है? तो अलर्ट में अपन देखते हैं, अलर्ट में क्या होता है ना कि सपोज किसी भी एलिमेंट को हमने रोल अलर्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देता है उस एलिमेंट को टू एरिया लाइव रीजन। ठीक है, एरिया लाइव रीजन क्या होता है बताता हूँ। अब अगर हमने किसी भी एलिमेंट को रोल अलर्ट दिया है तो क्या करता है ना, स्क्रीन रीडर मतलब कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे वो डॉम में चेक करते रहता है कि हाँ क्या चेंज हुआ है क्या नहीं चेंज हुआ है। तो अगर एरिया लाइव रीजन में कुछ भी चेंज हुआ है तो वो उसको अनाउंस कर देता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, मतलब ये चीज़ ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिफर करता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई एक्शन लेते हैं, जैसे हमने कोई बटन क्लिक किया उसके बाद हम अलर्ट टैग को डॉम में इंजेक्ट करते हैं, राइट। तो काफ़ी ब्राउज़र्स अलग वे में ट्रीट करते हैं। कोई ब्राउज़र्स क्या होता है वो डिक्टेट कर देंगे कि या मतलब अलर्ट के जो भी मैसेज है समथिंग वेंट रॉन्ग, वेयर एज सम ब्राउज़र्स दे डोंट लाइक दे आर नॉट एबल टू कैच, मतलब एरिया लाइव रीजन में कैच नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक हैक ये है कि आप एक पॉपअप को बाय डिफॉल्ट डॉम में इंजेक्ट करके रखो, उसका बस कंटेंट चेंज कर दो। तो कभी भी क्या होगा कि हमने एक स्नैक बार ऑलरेडी डॉम में रखा है, उसको हिडन वगैरह करके रखा है, और जैसे ही हम उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भेजते हैं तो वो उसका टेक्स्ट चेंज करता है और उसका डिस्प्ले मतलब हिडन हटा के कुछ दूसरी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज दे देता है। तो स्क्रीन रीडर्स क्या करते हैं, इस लाइव रीजन को देखते रहते हैं, देखते ही कि हाँ इसमें चेंज हुआ है तो वो उसको अनाउंस कर देते हैं। तो रोल अलर्ट देना मतलब इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर स्क्रीन रीडर्स अगर अपने को अलर्ट को भी डिक्टेट करवाना है।
इसमें ना the first thing that we see in section 1.1.1 is like we need to provide text alternatives to controls and images. मतलब alternatives to images मतलब तो आप समझ गए कि alt tag देना है, right? कंट्रोल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन चेकबॉक्स है, ठीक है, तो उसको अपने को कुछ लेबल्स वगैरह देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहीं इनपुट टाइप चेकबॉक्स दे दिया, ठीक है, और ये वाला सिनेरियो कंसीडर करो, यहाँ पे आपने अगर लेबल नहीं दिया है और सिंपली लिख दिया इनपुट टाइप चेकबॉक्स साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, तो जब भी कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी इसको रीड करेगी वो सिंपली बोलेगी चेकबॉक्स, वो ये लेबल क्या है नहीं बोलेगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसको लेबल के अंदर रैप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी आएगी वो जब रीड करेगी वो इसको मतलब डिक्टेट करेगा कि चेकबॉक्स साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर, राइट। तो रैपिंग थिंग्स इन लेबल इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लाइक से लाइक व्हाट्स द करंट एक्शन इज। इसको देने के भी काफ़ी तरीके हैं। एक ये है कि अपन इनपुट को कुछ आईडी दे देंगे और फिर लेबल एक फॉर एट्रीब्यूट आता है वो दे देंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, राइट। एक सेकंड, तो अब बेनिफिट्स क्या होता है ना, एक तो अपना असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को मतलब ये लेबल के थ्रू अपन बता सकते हैं कि हाँ ये क्या करता है, ये इनपुट जो भी है या फिर बटन है ये क्या करता है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ अपने मीट में ये कैसे दिखता है। क्रोम के अंदर अपने को ये मिलता है, यहाँ पे देखोगे ना तो ये एक्सेसिबिलिटी करके एक टैब है, इसके अंदर अपने को मतलब मिल जाता है एक्सेसिबल चीज़। सपोज मैं इसको फोकस करता हूँ बटन को, ये यहाँ पे अपने को ना ये डिटेल्स मिल जाते हैं कि इसका नेम क्या है, नेम जॉइन नाउ है। तो अब ये टाइप बटन था, इसको कैसे पता चला कि इसका नेम जॉइन नाउ है, राइट। बटन के केस में क्या होता है, ये कंटेंट से लेता है, जैसे इसका कंटेंट क्या है, बटन का जॉइन नाउ है, तो बटन के केस में ये जॉइन नाउ से ले लेगा। इन केस अगर हम इसको ओवरराइड करना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं जॉइन नाउ और लेकिन डिक्टेट करना चाहते हैं कुछ और, राइट, तो वो भी अपन कर सकते हैं। उसके लिए फिर एरिया लेबल यूज़ करते हैं। एरिया लेबल का प्रायोरिटी कंटेंट से ज़्यादा होता है, तो अगर हम यहाँ पे कंटेंट्स में जॉइन नाउ है और हम एरिया लेबल में लिख देते हैं जॉइन लेटर, तो वो डिक्टेट करेगा जॉइन लेटर, और यहाँ पे नेम में भी जॉइन लेटर दिखाएगा। कूल। और ये काइंड ऑफ आपका वही है, एक्सेसिबिलिटी ट्री ही है। इसका देखो बता रहा है कि ये रोल बटन है, इस फोकसेबल, ये काइंड ऑफ स्टेट्स होगा फोकसेबल है या नहीं है, मतलब काफ़ी में फिर क्या आता है यहाँ एक्सपेंडेबल आता है, उस तरह की चीज़ें आती हैं। ये बेसिकली अपना एक्सेसिबिलिटी ट्री है जो अपने को दिख रहा है इस बटन एलिमेंट के लिए। अब क्या है कि काफ़ी एलिमेंट्स अपने इंटरेक्टिव होते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख पाते हैं, मतलब यहाँ क्लिक करेंगे तो वो क्लिक होगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर वो स्क्रीन रीडर डिक्टेट करता है तो यहाँ पे वो डिक्टेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपन ये प्रॉपर्टीज़ कुछ मिस कर देते हैं। हमने या तो बटन नहीं यूज़ किया होगा, रोल देना भूल गए होंगे, कुछ उस तरह की चीज़ें। So where we can use labels? We can use labels on like select, button, input, checkboxes, right? For custom components, we can use area label attributes. As to custom component, we shouldn't like use, but if like in some scenario, if we are using, we should use area label attributes. Now, there are some elements like जिनका ना मतलब नेटिव एनालॉग भी नहीं है, मतलब ऐसा मानो कि चेकबॉक्स वगैरह में तो हमने दे दिया लेबल वगैरह, अगर डिप वगैरह यूज़ कर रहे हैं उस केस में क्या करेंगे, वहाँ एरिया लेबल तो अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेटिव नहीं है। तो उस केस में अपन एरिया लेबल्ड बाई यूज़ करते हैं। तो नेटिव एलिमेंट्स के लिए आप मान लो एरिया लेबल यूज़ करते हैं और नॉन नेटिव एलिमेंट्स के लिए एरिया लेबल्ड बाई यूज़ करते हैं। एरिया लेबल बाई का एक अलग बेनिफिट होता है कि हम लोग उसको कंपोज भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप ले लो, यहाँ पे ये H2 हेडिंग है, उसकी ID है मेंस शर्ट, और ये डिव है जो कि शॉप नाउ का एक बटन है, रोल बटन दिया इसने, इसकी ID है मेंस शर्ट बटन। तो अपन इसको
दोनों मतलब लेबल्ड बाई यूज करेंगे तो कंपोज कर सकते हैं कि इसकी मतलब ये मेंस शर्ट का भी है और मेंस शर्ट बटन भी है। तो जब भी आप यहाँ देखोगे एक्सेसिबिलिटी ट्री में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका लेबल्ड बाई में दो चीजें आ रही हैं, एक तो मेंस शर्ट है, दूसरा मेंस शर्ट बटन। तो बेनिफिट हो गया अपना एरिया लेबल्ड बाई का कि अपन उसको कंपोज कर सकते हैं। तो अब क्या है कि ठीक है, एरिया पे आते हैं। तो इसको आरिया एक्चुअली प्रोनाउंशिएट करते हैं, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव, मतलब ये काइंड ऑफ ये यूज़ करते हैं टर्म आरिया के जगह पे अपन वाई आरिया। इसका मतलब वही होता है कि एक सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करके अपना कोई अगर मतलब एक एप्लीकेशन बना हुआ है तो उसके लिए अपन इसको यूज़ कर रहे हैं। Right? Now, how this area works? Now, suppose we are using like the native elements. उसका जो बना अपना accessibility वो तो काइंड ऑफ ऐसा बन गया। इन केस अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर अपना accessibility में काफ़ी चीज़ें मिसिंग रहती हैं, जैसे स्टेट वगैरह हम नहीं दे पा रहे हैं अभी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने चेक बताया हुआ है, ये एक चेक बॉक्स है, फिर भी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ट्री में अपना स्टेट नहीं है। ठीक है, अगर हम एरिया लेबल्स यूज़ करते हैं ना तो अपना जो एक्सेसिबिलिटी ट्री जनरेट होता है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट पूरा बना लिया, उसके डॉम से जो एक्सेसिबिलिटी ट्री जनरेट हुआ है वो डिफर करेगा, मतलब हो सकता है टोटली डिफरेंट हो सकता है कि मतलब बिट्स एंड पीसेस डिफरेंट हो। अगर आप उसमें एरिया रोल्स यूज़ करते हो तो एरिया क्या बेनिफिट है कि आप उसमें स्टेट्स वगैरह डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज डाल सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप मतलब एरिया के अंदर स्टोर कर सकते हो। आगे और भी इसमें चीज़ें बताता हूँ। तो जब भी आप डॉम में मतलब एरिया एट्रीब्यूट्स ये सब यूज़ किए हो तो आपका एक्सेसिबिलिटी ट्री चेंज हो जाता है, और जब अपना एक्सेसिबिलिटी ट्री चेंज हो जाएगा यही इनपुट जाएगा अपना असिस्टिव टेक्नोलॉजी को, तो ऑब्वियसली अपना असिस्टिव टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग बिहेव करेगा। राइट, अगर आप स्टेट डाल देते हो, सपोज आप किसी यूज़र को दिखा रहे हो कि हाँ ये इनपुट है, मतलब ये एक सेलेक्ट कंपोनेंट है, और आपने उसे बता दिया कि ये अभी क्लोज्ड है, तो वो ओपन कर सकता है ना। अगर आप उससे जस्ट बता दो कि सेलेक्ट कंपोनेंट है तो आइडियली क्या करेगा कि मतलब उसको पता नहीं है वो ओपन है या क्लोज्ड है। हो सकता है वो ओपन हो, उसने क्लिक किया तो हो सकता है बंद हो जाए। अगर आप एरिया यूज़ करते हो तो आप एक साथ मतलब एक तरह से स्टेट अटैच कर दे रहे हो कि उसका करंट स्टेट क्या है। राइट, तो बेसिकली एरिया क्या करता है ना, वो एलिमेंट का बिहेवियर नहीं चेंज करता, मतलब वो काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा स्टेट डाल देता है। यहाँ पे आप देखोगे ये बस एक्सेसिबिलिटी ट्री को उसने डिफाइन किया है। ठीक है, उससे मतलब वो एलिमेंट का मतलब यूआई को भी नहीं चेंज करता है, उसका यूएक्स को भी नहीं चेंज करता है, उसका मतलब टैब ऑर्डर, फोकसिबिलिटी, ये सब किसी भी चीज़ को नहीं चेंज करता, वो बस एक्सेसिबिलिटी ट्री को चेंज करता है, जिससे कि अपने मतलब वॉइस रीडर्स वगैरह को ईजी होता है कैच करने में चीज़ों को। राइट, अब इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा एरिया का कि अपन जैसे पुराने वाले एग्जांपल में था कि इसको चेक बॉक्स था, ये चेक नहीं दिखा पा रहे थे, मतलब इसका स्टेट नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन एरिया चेक दे देंगे तो यहाँ पे देखोगे आप एक स्टेट ऐड हो चुका है। तो जो कस्टम कंपोनेंट्स है उसमें भी एरिया लेबल्स के हेल्प से अपन ये कर सकते हैं, स्टेट वगैरह डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी कैन मॉडिफाई सिमेंटिक्स। मॉडिफाई सिमेंटिक्स का मतलब क्या है कि अब सपोज यहाँ पे आप ये बटन मान लो, ये एक बटन था, ठीक है, इसका हमने क्लास टॉगल दे दिया। अब इसी में अगर एरिया का अपन यूज़ करते हैं, मतलब इसको हमने रोल स्विच दे दिया, रोल स्विच एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी, तो इसमें एरिया चेक ट्रू दे दिया इसको क्लास जो भी, तो ये काइंड ऑफ एक स्विच बन जाता है। मतलब ये अभी नॉर्मल एक बटन था, इसको हमने काइंड ऑफ एक स्विच मतलब बना दिया, रोल एक स्विच दे दिया और एरिया चेक मतलब इसमें एक स्टेट अटैच कर दिया, तो रोल स्विच दे दिया, तो ये काइंड ऑफ स्विच हो गया। राइट, अब ऐसा एग्जांपल मानो ना कि अपने प्लेटफॉर्म पे हमने आइकन बटन यूज़ किए हैं। राइट, तो आइकन बटन में तो हम लेबल दे नहीं सकते। ठीक है, तो जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी आती है वो डिलीट बटन पे आएगी, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये आइकन डिलीट करता क्या है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ मतलब लेबल्स दे सकते हैं, एरिया लेबल इक्वल्स टू डिलीट कोर्स या फिर डिलीट आइटम फ्रॉम लिस्ट, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यूआई पे तो कुछ नहीं दिखा,
राइट। यूएक्स में भी कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन जब अपना असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसको रीड करेगा तब वो बता देगा आइकन बटन पे आते ही कि हाँ डिलीट दिस कंटेंट, ये बटन का मतलब ये है, राइट। क्लियर है ना ये? अब अपना जैसे कि हर एक जो भी टेक्नोलॉजी है वो मतलब इवॉल्व करते रहता है धीरे धीरे, तो अपना एरिया रोल्स भी है वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि हम नए एरिया रोल्स को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देते हैं, और काफ़ी सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जो जिनमें उनका सपोर्ट अभी तक आया नहीं होता है। आप ऐसा समझो जैसे कि हम काफ़ी सारे फीचर्स क्रोम में यूज़ करते हैं, वो अभी तक हो सकता है सफारी में ना आए हों या फिर फायरफॉक्स में ना आए हों, राइट। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि अपने कुछ एरिया रोल्स नए ऐड होते रहते हैं, और मतलब हमें बस देखना है कि वो यूज़ ना कर लें हम, मतलब उसका प्रॉपर सपोर्ट अभी है सारे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में, राइट। मैक का अपना अपना ओन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, मैं अभी उसको डेमोन्स्ट्रेट कर देता लेकिन वो थोड़ा मिसबिहेव करता है, मतलब वो बोलना स्टार्ट कर देता है तो बंद ही नहीं होता है। उसको मतलब क्विट ही करना पड़ता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब इसका एक और बेनिफिट है कि हम अपना ओन मतलब यूआई पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। सपोज दैट मतलब काइंड ऑफ नेस्टेड ट्री है अपना, राइट। यूज़र को मतलब किसी भी यूज़र को जो वॉइस रीडर यूज़ कर रहा है उसको पता चलेगा कि ये नेस्टेड ट्री है, तो हम खुद से मतलब एरिया एट्रीब्यूट्स इस तरह से दे सकते हैं जिससे कि यूज़र जान से पाएगा कि वो क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रोल ट्री है, लिस्ट रोल ट्री आइटम है, इसका एक्सपेंडेड ट्रू है फॉल्स है, तो ये जब ट्रू रहेगा तो ये मतलब ये ओपन है, फॉल्स है मतलब ये कोलैप्स्ड है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब खुद का हम एक पैटर्न बना सकते हैं जिससे कि यूज़र्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा समझने में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं वही यूज़ करेंगे, यूज़र्स को वही बताएंगे। हम खुद का भी कोई पैटर्न डेवलप करके उनको मतलब बता सकते हैं जिससे कि मतलब वो चीज़ें, मेन मोटिव क्या है अपना कि कोई भी यूज़र हम जो बताना चाह रहे हैं वो जल्दी से समझ पाए, राइट। तो हम खुद के यूआई यूएक्स पैटर्न भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं एरिया रोल्स यूज़ करके। और सबसे मेजर बेनिफिट क्या है ना अपना एरिया लेबल्स का, अब जैसे लेबल्स यूज़ कर रहे थे वो क्या है बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चल रहा था, मतलब लेबल इसका ये लेबल होगा ऐसा करके। अब हम यहाँ पे ना मतलब काइंड ऑफ सिबलिंग रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं एरिया लेबल्स यूज़ करके। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, ये एक काइंड ऑफ ड्रॉप मतलब कोलैप्सिबल मेन्यू है, एडवांस सेटिंग। ये जब ओपन होता है तो फिर हमको 2 चेक बॉक्सेस दिखते हैं, राइट। तो इसका अपना एक स्टेट है एरिया एक्सपैंडेड, ट्रू फॉल्स, जिसके बेसिस पे ये खुला दिखेगा। अब इसके कंट्रोल्स क्या हैं, मतलब ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये एडवांस सेटिंग को कंट्रोल करता है। एडवांस सेटिंग में देखो क्या क्या आ जाता है, आईडी एडवांस सेटिंग है, इसके अंदर जो चेक बॉक्सेस आ जाते हैं, मतलब ये क्या बता रहा है कि ये चीज़ इन दोनों को गवर्न करता है, जबकि ये डॉम में देखो अलग अलग प्लेस पे है। तो एरिया लेबल्स के हेल्प से अपन ये भी कर सकते हैं कि वो जो मतलब सिबलिंग रिलेशन है उनके बीच भी अपन ये काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं उनका इनसे ये रिलेशन, राइट। और लाइव अपडेट्स का तो मैंने बता ही दिया था, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग तो एरिया रोल अलर्ट कर देंगे तो वो काइंड ऑफ ऐसे ही बिहेव करेगा। तो इसका मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन ही है, मतलब W3 में आप देखोगे ना तो एरिया लेवल्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा बुक जैसा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर हर एक पॉइंट को अपन कवर करेंगे तो मतलब एक अलग सेशन ही लगेगा उसको कवर करने के लिए। तो बेसिक्स यही थे कि एरिया लेवल्स वगैरह इस तरह से यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपना टेस्टिंग पे, ये करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे अपना चलता है। अभी के लिए अपन एक्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसे और भी टूल्स हैं मार्केट में। एक्स का बेनिफिट क्या है कि अपन इसको सेलेनियम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपना एक सेलेनियम के साथ अभी चल रहा होगा टेस्टिंग, तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैनुअल टेस्टिंग करनी है तो क्रोम में एज अ एक्सटेंशन डाल के कर सकते हैं, ठीक है। और CLI के थ्रू भी कर सकते हैं। और CLI के थ्रू तो मतलब इसका इंटरफेस इतना अच्छा है ना, अपन को बस कमांड रन करना पड़ता है x http://meet.com और ये लिस्ट कर देता है सारे वायलेशन एरर्स को एक साथ, ठीक है। मैं एक करके ही दिखाता हूँ अभी कि कैसे ये चलता है। मैंने वो एक्सटेंशन डाल लिया है एक्स का, दिख रही है इसके क्रोम दिख रहा है।
यस सपोज ये अपना meet.learn.com है, यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक एक्सटेंशन डाला है एक्स डेव टूल का। ठीक है, अब आप एक पार्ट ऑफ पेज कर सकते हो या फिर पूरा पेज को कर सकते हो। तो चलो पूरा पेज करते हैं। तो 110 इश्यूज़ हैं अपने। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, देखो एक तो अपना इश्यूज़ दिख रहा है कि प्रोग्रेस बार नोट्स मस्ट हैव एन एक्सेसिबल नेम, मतलब उनमें नाम नहीं दिया हुआ है। बटन्स मस्ट हैव डिसर्नेबल टेक्स्ट, ये पता नहीं क्या होंगे। एलिमेंट्स, हाँ देखो कलर कंट्रास्ट का एक आ रहा है, तो ये चीज़ें अब ये कौन फिक्स करेगा, अपने डिज़ाइन वाले मतलब देखेंगे। तो कैसे पता चलेगा? अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको मतलब उसके थ्रू ग्रैब कर सकते हैं। और अगर जैसे मान लो कलर वाले को मैंने सेलेक्ट किया, इसके बारे में मेरे को और जानना है, मैं नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता है, या मोर इन्फो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके रिलेवेंट डिटेल्स आ जाएगा कि माइनर है तो फिर मतलब क्रिटिकल है क्या है, उसको मतलब किस तरह की वैल्यूज़ दे सकते हैं। और शुरू में मैंने एक आपको ये दिखाया था ये कॉन्ट्रास्ट चेकर, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि उसका रेशियो क्या है, राइट। तो अपने केस में देखते हैं कौन से एलिमेंट का कलर गलत है। एक तो ये है, मतलब ये आप डेवलपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे इसने ये दे दिया है, तो आप डॉलर और इसको करके डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो। एल्स यहाँ पे मतलब इंस्पेक्ट करोगे तो डायरेक्टली उस पर फोकस कर देगा। ये देखो ये बता रहा है ये व्यू वॉल का कलर कंट्रास्ट सही नहीं है, राइट। मतलब वाइट है और इसका कलर भी थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर आ जा रहा है। अगर हम इसको कोई लो एंड पीसी पे देखेंगे जिसका स्क्रीन उतना अच्छा नहीं है तो हो सकता है ये दिखे भी नहीं। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको तपस एक बार इंस्पेक्ट करना, वहाँ पर भी आ जाता है जो टॉप लेफ्ट वाला इंस्पेक्ट है ना आइकन। हाँ ये इधर हवर करके रख दो, इसके ऊपर करना हवर। ओके, मतलब इधर भी आ जाता है ना क्रोम के अंदर पॉपअप जो होता है ना। कवर कलर प्रॉपर्टी पे करेगा तो आएगा मोस्टली, या फिर अंदर ये का प्रॉपर्टीज में आता है, क्रोम में बिल्ड दिखाता है वो कॉन्ट्रास्ट। हाँ ये जो पॉपअप दिख रहा है ना स्पैन डॉट वाला, उधर काफ़ी चीज़ें आ जाती है कॉन्ट्रास्ट रेशो वगैरह की, तो वो भी इजीली पता चल जाता है। हाँ ठीक है। मतलब कॉन्ट्रास्ट रेशियो तो जस्ट मतलब एक पार्ट है, इसमें और भी जैसे कि देख HTML एलिमेंट मस्ट हैव अ लैंग्वेज एट्रीब्यूट, मतलब अपने को लैंग्वेज बताना है, वो चीज़ अपन कर सकते हैं। ये आईडी यूनिक वाला कैसे? आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। अच्छा ये यहाँ पे जो आईडी हमने सेम ग्रेडियंट को 2-3 जगह यूज़ किया होगा, तो ये वो बता रहा कि ये गलत है। और मतलब आप CLI के थ्रू ये यूज़ करोगे ना एक्स को, तो आप एक्स और ये meet.learn.com/home डालोगे तो काइंड ऑफ ये सेम जो यहाँ एरर्स दिख रहे हैं ना, उसको वो JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कमांड लाइन में दिखा देता है, तो वो काफ़ी ईजी होता है। और सेलेनियम के साथ भी कैसे होगा मैं एक मिनट बता देता हूँ। बेसिकली मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो एरर्स हैं ना अपन यहाँ से देख के ये कर सकते हैं। ये तो अपना कंटेंट को लैंडमार्क में डालना था, हमने नहीं डाला है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अपन मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए सही कर सकते हैं। हाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने ऑन है, सही है, अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर सेलेनियम के साथ अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे अपना मतलब एक तो अपना एक्स कोर वेब ड्राइवर JS है, ये अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब क्यूबेटू मुझे ज़्यादा पता होगा, अगर सेलेनियम के साथ अपन काम कर रहे हैं ना तो उसके लिए कुछ बाइनरी अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने PC में, राइट। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद अपन ये रन कर पाएंगे, अदरवाइज एक एरर मारता है। और फिर अपना एक्स का आई गेस पुराने वर्जन सब डेप्रिकेट हो गए हैं, अभी नया जो भी है एक्स कोर के अंदर है। तो एक्स कोर का CLI का CLI बोल रहा हूँ, एक्स कोर का वेब ड्राइवर JS का डिपेंडेंसी एक डालना पड़ता है, काफ़ी मतलब सिंपल है। मैं एक बार दिखाई देता हूँ एक्स कोर CLI।
हाँ, ये अपना वेब ड्राइवर का मतलब यहाँ पे इसने सेटअप कर दिया हुआ है। सिंपली अपने को ये बस इतना करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली अपना यहाँ पे वेबसाइट का हमने डाल दिया यूआरएल, और ये जब भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करता है तो मतलब ये साथ में रन कर देगा और एनालाइज करके अपने को एरर्स दे देता है। तो इसके और भी अप्रोच है कि अपन स्क्रिप्ट एक आती है इसकी, उसको डायरेक्टली अपने इंडेक्स डॉट में डाल दें, तो जब भी अपन रन करेंगे तो वो अपने को दिखा देगा, राइट। तो ये हो गया अपना ऑटोमेटेड टेस्टिंग का। तो अपन क्यों अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक वी आर अ स्टार्टअप एंड नाउ मतलब अपन काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और करेंटली अवर कोड बेस इज़ लाइक क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू लाइक अभी से जो 4-5 साल बाद अपना जो कोड बेस होगा उसके मुकाबले अभी काफ़ी स्मॉल है, और काफ़ी चीज़ें अभी हम नया डेवलप ही कर रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी इन यूज़ नहीं है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। तो अगर अभी से हम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अपना बना लेते हैं कि अपने वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाएंगे, तो जब भी अपन फॉरेन मार्केट्स को टच करेंगे तो अपने लिए उतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, राइट। मतलब लीगली अपने को उतने ज़्यादा मतलब इश्यूज़ नहीं आएंगे अपने वेबसाइट्स अगर एक्सेसिबल होगा तो, और द लॉन्ग रन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दूसरा सबसे मेजर कंसर्न क्या है कि अपना लर्न का सबसे मेजर गोल क्या है, मतलब इम्प्रोवाइज लर्निंग, टीच बेटर लर्न बेटर। अपने आप वेबसाइट पे भी देखोगे तो वहाँ पे दिखता है कि द मेन मोटिव ऑफ अस इज लाइक टीच बेटर लर्न बेटर। तो जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी तो मतलब बनता है ना कि वो भी अच्छे से मतलब ग्रो कर पाएँ, उनके लिए भी लर्निंग सेम हो, तो हम भी मतलब उनके लिए भी लर्निंग काइंड ऑफ सेम कर देंगे। तो जो गैप रहेगा, जो एजुकेशन गैप रहेगा कि उनको उतना प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा वेबसाइट्स के थ्रू, वो भी फुलफिल हो जाएगा। अगर कल को हमारा वेबसाइट्स मतलब हमारा जो लर्न है वो काफ़ी अच्छा बना, जो कि मतलब इन केस बनेगा ही, राइट, मतलब हम काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं, तो हमारा हम उन कस्टमर्स को भी टच करेंगे जो कि मतलब उतने अच्छे एबल्ड नहीं हैं, जो डिसेबल्ड हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम मतलब उनको निराश करें, राइट। तो हमारा वेबसाइट अगर एक्सेसिबल होगा तो वो भी इससे ग्रैब कर पाएंगे, वो भी हमारे वेबसाइट से लर्न कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए मतलब काइंड ऑफ एक प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब अगर अभी से अपन इन सब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब हम ऐसे जैसे जो भी लाइब्रेरीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो आइडियली ये सब चीज़ें हैंडल करती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेक्शंस होते हैं जो जो हम खुद से लिखते हैं उनमें ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डेवलपर, एज ए टेस्टर कि हम ये देखें, तो इंश्योर करें कि हमारा वेबसाइट मतलब काफ़ी एक्सेसिबल है। अगर शुरू से ये प्रैक्टिस रहेगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि बाद में ये आदत बन जाएगी, मतलब हम ना चाहते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने वेबसाइट को एक्सेसिबल ही बना के मतलब भेजेंगे, राइट। तो ये था अपना आज का सेशन। ये जो भी रेफरेंस था अपना, ये 2 बंदों से लिया है मैंने। रॉब डॉटसन है, ये डेवलपर एडवोकेट है क्रोम टीम का, काफ़ी सही बंदा है, बहुत नॉलेज है इसको, एडवोकेट है फिर भी मतलब कोड वगैरह सब करता है। और दूसरा है पैब्लो स्टैनली है, ये कोई सीईओ है ब्लश का, ब्लश और डिज़ाइन, अच्छी सी वेबसाइट है, देख सकते हो आप, डिज़ाइनर्स देख सकते हैं इसको। तो इन दोनों के टीचिंग से रेफरेंस लिया था। तो बस यही आज का सेशन में इतना ही था। कुछ डाउट्स, क्वेरीज? ब्रो एक बार वो ऑटो में लिंक नहीं कोशिश कर लो ना, और क्या ऑटोमेशन वाला? ऑटोमेशन वाली जो यूआरएल थी ना जहाँ से हम बोल रहे थे ये कॉपी हाँ, करना है, मैं भेज तो एक देता बार हूँ। शेयर कर। तो बस ये भी दिखना, ये भी बहुत सही है। तो ये डाल के यानी वो उतना ज़्यादा नहीं दिखाता एक्चुअली जितना, पर तुरंत दिखा देता है इन लाइन ही। क्या है नाम एक्सटेंशन का? मैंने जनरल पे उस पर फ्रंट एंड टीम पे डाला, ठीक है, early, ठीक है। तो वो तुरंत कोई भी वेबसाइट ओपन करो दिखा देगा, यानी बिना डेव टूल हो सबके, यानी ऐसा सिंपल। बढ़िया सेशन था, तो बस बहुत मजा आया। कहाँ पे बोला आप तो 1 आवर हाँ से यार। आप तो सब बोल ही रहे थे, कौन सा काफी अच्छा सेशन है। तो बस भाई ये पीडीएफ एक बार शेयर कर देना ना अपने जनरल पे, यहाँ हाँ अपने जो पीपीटी बनाया ना वो, ठीक है। भाई मजा आ गया सही। सुपर्ब सेशन यार तापस, थैंक्स। बहुत मज़ेदार। ग्रिड लेआउट में कुछ